Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Well, stay home and save lives. Till now we have done the Lake Isle of Innisfree, question and answer and reference to context based on the poem. Are you all completing your work or not? Yes. Keep your work complete and the ones whose work is not complete, a special mention to them. Do not procrastinate and complete your work on timely basis. Well, I am Ghazala Sharik Hassan and we are going to do our next chapter, The Sniper by Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty, born on 28 August 1896 and died on 7 September 1984, he was an Irish novelist, short story writer and major figure in the Irish literary renaissance. He served on the Western Front as a soldier in the Irish Guards and was badly injured. After the war, he was a founding member of the Communist Party of Ireland. This was the introduction of Liam O'Flaherty. Now these are the hard words of the chapter and it has been sent to you. I hope you have completed and jotted it down in your notebook. Now let's see: twilight, Dublin, fleecy, leafy, beleaguered, spasmodically, free staters, waging, sniper, slung, ascetic, gleam, fanatic, parapet, whiff. These are also part of your hard words: cautiously, whizzed, stack, turret, walled, clattered, oozing, breastwork, lodged, paroxysm, wadding, ruse, silhouetted, recoil, crumpled up. Some more hard words are shuddered, gibber, concussion, reckless. Now let's see some questions based on these hard words. How the questions will come in exams. So first question you can see here: make a meaningful word from jumbled words. The first word you can see, it is only a group of word not making a sense, not making a proper word. So it is in jumbled form and it will come like this in exam and you are supposed to make a meaningful word from this. And apart from this, what are you supposed to do? Just record your voice repeating these hard words and send it to the school. I want to see how are you pronouncing this. Now students, let's see the meaning of difficult words of the chapter. The first word is twilight, the time of day between daylight and darkness, after sunset or before sunrise. This is the time, शाम से बाद का और रात से पहले का time is twilight. Dublin is the capital and largest city of Ireland. Now fleecy is white and fluffy looking. You will see one word, fleecy cloud. तो कैसे होते हैं fleecy cloud? White and fluffy looking. Leafy, a river in the Ireland. Beleaguered, put in a very difficult situation. Free staters, this is the Irish Free State and it was established in 1922. And in the chapter you will see two groups. The one is Republican and the other is Free Staters. So the war is taking place between these two groups. Waging, carry on a war or a campaign. Sniper, a person who shoots from a hiding place, especially accurately and at long range. Ascetic, characterized by severe self-discipline and abstention from all forms of indulgence. Someone who is saint-like, कोई साधु जैसा. Gleam, shine brightly, especially with reflected light. Fanatic, filled with or expressing excessive zeal. Parapet, a low protective wall along the edge of a roof, bridge or balcony. Whiff, a puff or breathe of air or smoke cautiously in a way that deliberately avoids potential problems or dangers or carefully. Whizzed, move quickly through the air with a
whistling or buzzing sound. Stack, a pile of objects, typically one that is neatly arranged. ना stack of book जो एकदम बराबर से arrange होती है. Turret, a small tower on top of a larger tower or the corner of a building or wall, typically of a castle. Walled, move or cause to move rapidly round and round. Clattered, make or cause to make continuous rattling sound. Oozing of a fluid, slowly trickle or seep out of something. Breastwork, a low temporary defense or parapet. Lodge, flattened by wind or rain. Paroxysm, a sudden attack or outburst of a particular emotion or activity. Wadding, soft, thick material used to line garments or pack fragile items. Ruse, an action intended to deceive someone. Silhouetted, the dark shape and outline of someone or something visible in restricted light against a brighter background. Recoil, suddenly spring or flinch back in fear, horror or disgust. Crumpled up, to crush something such as paper or cloth so that it forms untidy folds. Shuddered, shake or vibrate deeply. Gibber, speak rapidly and unintelligibly, typically through fear or shock. Concussion, temporary unconsciousness or confusion and other symptoms caused by a blow on the head. Reckless, heedless of danger or the consequences of one's actions. Students, these word meanings are very important. It will not only help you to understand the chapter in a better way, but also it will be used in future. So it will just add something, some value to your personality. So learn these word meanings. Now let's go through the chapter. The Sniper. The long June twilight faded into night. Dublin lay enveloped in darkness, but for the dim light of the moon that shone through fleecy clouds, casting a pale light as of approaching dawn over the streets and the dark waters of the Liffey. तो जून की एक लंबी ट्वाइलाइट की बात हो रही है. नाउ व्हाट इज़ ट्वाइलाइट? ट्वाइलाइट इज़ शाम के बाद और रात से पहले का वक्त इज़ ट्वाइलाइट. तो जो ट्वाइलाइट है अब वो रात में बदल चुकी है. डबलिन में अंधेरा छा चुका है. डबलिन पूरे अंधेरे से घिरा हुआ है. नाउ व्हाट इज़ डबलिन? डबलिन इज़ द नेम ऑफ अ सिटी एंड इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ आयरलैंड. तो डबलिन में पूरा अंधेरा है, लेकिन मून से जो डिम सी लाइट आ रही है और वो इस तरह से फ्लीसी क्लाउड से होकर, जो मून की डिम लाइट है वो फ्लीसी क्लाउड से होकर इस तरह से जर्द सी रोशनी आ रही है, इस तरह से पेल लाइट आ रही है, जिसकी वजह से, और वो जो लाइट है वो स्ट्रीट्स पे पड़ रही है, डबलिन की गलियों पे पड़ रही है, एंड डार्क वाटर्स ऑफ द लीफी के डार्क वाटर्स पे पड़ रही है. नाउ व्हाट इज़ लीफी? लीफी इज़ द रिवर विच इज़ देयर इन डबलिन. तो जो मून की डिम लाइट फ्लीसी क्लाउड से होकर आ रही है और वो जो रोशनी है वो किस तरह से है? एकदम जर्द सी रोशनी है, पेल लाइट है, और वो रोशनी जब डबलिन के स्ट्रीट्स पे और लीफी के डार्क वाटर्स पे पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है सुबह होने वाली है. Around the beleaguered forecourts the heavy guns roared here and there through the city. Machine guns and rifles broke the silence of the night spasmodically, like dogs barking on lone farms. Republicans and Free Staters were waging civil war. तो अभी फोरकोर्ट एक बिल्डिंग है, उसके चारों ओर सिर्फ गन्स के रोअर करने की आवाज़ आ रही. रोअर क्या है? रोअर तो साउंड है, आपके शेर के दहाड़ने की आवाज़ है. तो मतलब गन्स की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि इट कैन बी कंपेयर्ड विद रोअर ऑफ द लायन. तो अभी फोरकोर्ट जो बिल्डिंग है उसके चारों ओर बस गन्स के रोअर की आवाज़ आ रही है, बस गन्स की चलने की आवाज़ आ रही है, और पूरे शहर में यहाँ वहाँ बस मशीन गन्स, राइफल्स, बस इसी की वजह से रात का सन्नाटा अगर टूट रहा है, यानी पूरा चारों तरफ रात में सिर्फ सन्नाटा है, अगर कोई किसी चीज़ से अगर वो साइलेंस ब्रेक हो रही है तो वो सिर्फ क्या है?
मशीन गन्स, राइफल्स और गन्स की आवाज़ से ही हो रही है। और ये कैसे हो रहा है? स्पैज्मोडिकली। स्पैज्मोडिकली कई बार क्या है आपका, ये एक मसल पेन होता है, जैसे कई बार आपको यू फील पेन्ड और इन अ मोमेंट एंड यू फील रिलीव्ड इन द नेक्स्ट मोमेंट। कई बार आपको होता है हल्का दर्द महसूस हुआ, फिर मसल पेन, और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद यू फील रिलीव्ड। आपको थोड़ी देर बाद लगता है कि आप ठीक हो गए, फिर थोड़ा सा दर्द होता है। तो ये जो गन्स, मशीन गन्स और राइफल्स की चलने की आवाज़ है जो चल रही है, वो क्या हो रही है? स्पैज्मोडिकली हो रही है, यानी थोड़ी चलती है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप है, और फिर थोड़ी देर बाद वही सेम आवाज़ें आती हैं। और अभी रिपब्लिकन्स एंड फ्री स्टेटर्स वर वेजिंग सिविल वॉर। तो अभी क्या है? रिपब्लिकन, दो डबलिन के ही लोगों के बीच, दो ग्रुप के बीच क्या हो रहा है? सिविल वॉर हो रहा है। कौन कौन से ग्रुप हैं? पहला तो एक आपका रिपब्लिकन्स हो गया ग्रुप, और दूसरा क्या हो गया? फ्री स्टेटर्स। तो इन दोनों के बीच वॉर हो रही है। On a rooftop near O'Connell Bridge, a Republican sniper lay watching. अभी एक ओ'कॉनल ब्रिज है, उसके पास ही एक रूफ टॉप है। तो वहाँ पे एक रिपब्लिकन स्नाइपर है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है, वहाँ पे देख रहा है उस एरिया को। बिसाइड हिम ले हिज राइफल, और उसके पास ही उसका राइफल रखा हुआ है। एंड ओवर हिज शोल्डर वॉज स्लंग अ पेयर ऑफ फील्ड ग्लासेस, और उसके कंधे पे एक फील्ड ग्लासेस, पेयर ऑफ फील्ड ग्लासेस लटकी हुई हैं। फील्ड ग्लासेस क्या होते हैं? दिस इज काइंड ऑफ बाइनोक्यूलर्स। His face was the face of a student, thin and ascetic, but his eyes had the cold gleam of the fanatic. They were deep and thoughtful, the eyes of a man who is used to looking at death. अब उसकी शक्ल का डिस्क्रिप्शन है। किसकी शक्ल का डिस्क्रिप्शन है? स्नाइपर के, रिपब्लिकन स्नाइपर के शक्ल के डिस्क्रिप्शन है। अब उसकी शक्ल जो है एकदम स्टूडेंट की शक्ल की जैसी है, थिन है, एस्थेटिक है। एस्थेटिक मतलब कोई दुनियावी लालच नहीं है। बट हिज आईज, लेकिन उसकी आंखें जो है, उसकी आंखों में एक हल्की सी झलक है, एक फैनेटिक की झलक है। फैनेटिक क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे हैव एक्सट्रीम डेंजरस ओपिनियन, उसको हम कट्टर भी बोलते हैं। तो उसकी आंखों में थोड़ा सा इस तरह से कट्टर वाली थोड़ी सी चमक है। They were deep and thoughtful, द आइज़ ऑफ अ मैन। और उसकी आँख क्या कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा था, गहराई या बहुत ही थॉटफुल लग रही थी उसकी आँखें, द आइज़ ऑफ अ मैन। और उसकी आँखें देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक ऐसे इंसान की आँख है जिसको, जो कि डेथ वगैरह उसके लिए बहुत, मौत देखना उसके लिए बहुत आम बात हो गई है, उसको आदत हो गई है इस तरह की चीज़ें देखने की। उसकी आंखों से ऐसा झलक रहा था। ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच हंग्रली, वो बहुत ही भूखा था, तो ऐसा पता चल रहा था जब वो एक सैंडविच खा रहा था, और जब वो खा रहा था तो ऐसा पता चल रहा था कि उसको बहुत भूख लगी है। He had eaten nothing since morning. He had been too excited to eat. He finished the sandwich and taking a flask of whiskey from his pocket, he took a short draught and then he returned the flask to his pocket. तो वो सैंडविच खा रहा था और उससे देख के ये ज़ाहिर हो रहा था कि बहुत भूख लगी है उसको। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और सुबह से, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो वॉच कर रहा था, तो वो सुबह से बहुत ज़्यादा खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यानी वो खाना चाहता था, लेकिन सिंस ही वॉज बिजी तो ही कुडंट ईट। तो खाने को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं अब ये कर लूँगा तो मैं खाऊँगा। उसने अपना सैंडविच फिनिश किया और पॉकेट से विस्की की फ्लास्क निकाली और एक छोटी सी घूंट ली। देन ही रिटर्न द फ्लास्क टू हिज पॉकेट, और फ्लास्क को दोबारा से अपने पॉकेट में रख लिया। He paused for a moment, considering whether he should risk a smoke. It was dangerous. The flash might be seen in the darkness and there were enemies watching. He decided to take the risk. अब आफ्टर हैविंग विस्की वो 1 मिनट के लिए रुका, कुछ मोमेंट के लिए रुका, ये सोचते हुए कि उसको स्मोक का रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी ख़तरनाक था। अगर स्मोक का फ्लैश दिख जाएगा अंधेरे में तो एनिमीज़ हैं वो वॉच कर रहे हैं, तो किसी ने, सबको पता चल जाएगा, जो भी एनिमीज़ हैं जो वॉच कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई है। तो बावजूद इसके ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, वो तब भी उसने रिस्क लेने का फैसला लिया। Placing a cigarette between his lips, he struck a match, inhaled the smoke hurriedly and put out the light.
और उसने सिगरेट को अपने होठों के बीच में रखा, माचिस जलाई और इनहेल किया और लाइट को जल्दी ही बुझा दी। Almost immediately a bullet flattened itself against the parapet of the roof. और तभी एक बुलेट जो है जल्दी से आई, जो कि आके रूफ के पैरापेट इन द सेंस बाउंड्री पे आके एक बुलेट टकराए, यानी एनिमी को पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई है। द स्नाइपर टुक अनदर whiff and put out the cigarette. अब जो स्नाइपर है उसने एक और कश ली, एक बार और स्मोक किया और सिगरेट को बुझा दिया। देन ही swore softly and crawled away to the left. फिर उसने मतलब शिट या जो भी थोड़ा सा बैड लैंग्वेज का, swore इन द सेंस बैड लैंग्वेज का, थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज, वियर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया और सॉफ्टली, सॉफ्ट वे ही, क्योंकि बहुत तेज तो बोल नहीं सकता था, और लेफ्ट की तरफ क्रॉल किया। Cautiously he raised himself and peered over the parapet. और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली उसने खुद को उठाया हल्का सा और पैरापेट के ऊपर से, यानी बाउंड्री के ऊपर से झांका। There was a flash and a bullet whizzed over his head. He dropped immediately. He had seen the flash. It came from the opposite side of the street. जैसे ही फ्लैश दिखी सिगरेट की और वैसे ही एक बुलेट आई, उस जल्दी से नीचे हुआ, यानी इसका मतलब क्या है कि एनिमी ने फ्लैश देख लिया है। ये बिल्कुल स्ट्रीट के अपोजिट साइड से आई। He rolled over the roof to a chimney stack in the rear and slowly drew himself up behind it until his eyes were level with the top of the parapet. अब क्या है, he rolled over the roof. अब वो रोल ओवर होके रूफ पे ही रोल ओवर होके चिमनी के पास गया। अब चिमनी क्या है, जैसे जो भी इस तरह की कंट्रीज होती है जहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो इस तरह के घर, इस तरह कंट्रीज़ में घरों में क्या होता है, फायर प्लेस होता है। तो जब फायर प्लेस घर में होता है तो ऊपर से धुआं निकलने के लिए घरों में ही चिमनी बनी होती है। तो वो चिमनी के पास गया और धीरे धीरे अपने आप को उठाया, उसके पीछे गया और अपने आप को ऐसी जगह पे रख लिया जहाँ पे पैरापेट के, यानी बाउंड्री के लेवल में कर लिया, जहाँ पे उसको चीज़ें इजीली दिख सके। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जस्ट द डिम आउटलाइन ऑफ द अपोजिट हाउस टॉप अगेंस्ट द ब्लू स्काई। और क्या, बस डिम आउटलाइन, हल्की सी आउटलाइन दिख रही थी अपोजिट हाउस टॉप की, बस हल्की सी आउटलाइन दिख रही थी ब्लू स्काई में, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। हिज एनिमी वॉज अंडर कवर, और उसका एनिमी जो है वो। जस्ट देन एन आर्मर्ड कार came across the bridge and advanced slowly up the street. It stopped on the opposite side of the street, 50 yards ahead. The sniper could hear the dull panting of the motor. His heart beat faster. It was an enemy car. He wanted to fire, but he knew it was useless. His bullets would never pierce the steel that covered the grey monster. तो जस्ट देन तभी एक आर्मर्ड एक कार आई जिसमें आर्म्स रखे हुए थे, और वो ब्रिज से होकर आई और धीरे धीरे होते होते स्ट्रीट में स्लोली स्ट्रीट की तरफ आई ब्रिज से होते हुए, और ये स्ट्रीट के अपोजिट साइड में रुक गई ऑलमोस्ट 50 यार्ड्स आने के बाद। द स्नाइपर जो है, स्नाइपर को ये सब चीज़ें, डल पैंटिंग यानी धीरे धीरे जब रुकने की जो होती है आवाज़, वो सुनाई दे रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी हार्ट बीट जो है तेज़ हो गई। ये एक एनिमी की कार थी, वो फायर करना चाहता था, बट ही न्यू इट वॉज यूजलेस। उसको पता था कि ये यूजलेस है, क्योंकि उसके बुलेट्स जो हैं कभी भी स्टील में छेद नहीं करेंगे जिसके अंदर ग्रे मॉन्स्टर बैठा हुआ है। देन राउंड द कॉर्नर ऑफ अ साइड स्ट्रीट केम एन ओल्ड वुमन, हर हेड कवर्ड बाय अ टैटर्ड शॉल। तभी स्ट्रीट के कॉर्नर से एक वुमेन आई, ओल्ड वुमेन, और उसका जो हेड है वो एक टैटर्ड, बहुत ही ओल्ड ओवर यूज्ड शॉल से ढका हुआ था, और वो बात करने लगी। She began to talk to the man in the turret of the car and she was pointing to the roof where the sniper lay, an informer. अब वो वुमेन आई और उससे बात करने लगी, जो कार के टरेट में, यानी कार के जो ऊपर बैठा हुआ था उससे बात करने लगी, और वो पॉइंट कर रही थी उस रूफ की तरफ जहाँ पे स्नाइपर
बैठा हुआ था, यानी ये कौन थी, एक इन्फॉर्मर थी। द टरेट ओपन, अब क्या है, जो टरेट है वो, जो कार का टरेट है वो खुला, एंड अ मैंस हेड एंड शोल्डर्स अपीयर्ड, और वहाँ पे एक आदमी का सर और शोल्डर्स दिखे, लुकिंग टुवर्ड द स्नाइपर, जो कि स्नाइपर की तरफ देख रहे थे। द स्नाइपर रेज्ड हिज राइफल एंड फायर्ड, स्नाइपर ने अपने राइफल उठाया और फायर किया। द हेड फेल हेविली ऑन द टरेट वॉल, और जो एनिमी स्नाइपर है उसका जो हेड है वो टरेट वॉल पे बहुत ही ज़ोर से लड़ा। द वुमेन darted towards the side street and the sniper fired again. The woman whirled round and fell with a shriek into the gutter. अब वुमेन जो है वो साइड स्ट्रीट की तरफ बढ़ी, आगे उसने भागने की कोशिश की और स्नाइपर ने एक बार फिर से फायर किया, और जो वुमेन है वो whirled round, एकदम चक्कर खा के, एंड फेल, उस चक्कर खा के एकदम गोल गोल होके गिरी, विद श्रीक, बहुत ही श्रीक साउंड के साथ, बहुत ही चीख के साथ, इनटू द गटर, गटर में गिर गई। सडनली फ्रॉम द अपोजिट रूफ अ शॉट रैंग आउट एंड द स्नाइपर ड्रॉप्ड हिज राइफल विद अ कर्स। द राइफल क्लैटर टू द रूफ। अभी क्या, अचानक से, ये तो खैर नीचे की बात हो गई, अब ऊपर अपोजिट रूफ में, रूफ से फिर से एक क्या हुई, एक शॉट आई स्नाइपर की तरफ, और स्नाइपर ने क्या किया, अपना राइफल ड्रॉप कर दिया, ऐसे छोड़ दिया रूफ पे, ऐसे मारा हल्के से, विद कर्स, कर्स के साथ के, मतलब देखो भी फिर से ये हो रहा है। द राइफल क्लैटर टू द रूफ, और जब राइफल उसने फेंका हल्के से तो एक क्लैटर की साउंड आई। द स्नाइपर थॉट द नॉइज वुड वेक द डेड। अब चूंकि सन्नाटा था तो नाइट का टाइम है, तो स्नाइपर को ऐसा लगा कि जो भी आवाज़ आई है तो उस इतनी तेज़ आवाज़ थी कि उससे क्या होता है कि जो डेड हैं वो भी जग जाएंगे, इससे मुर्दे लोग भी जग जाएंगे। He stooped to pick the rifle up. वो राइफल उठाने के लिए उठा। He couldn't lift it. वो इसको उठा नहीं पा रहा था। His forearm was dead. यानी जो वो उसने एनिमी स्नाइपर ने जो शूट किया है तो वो क्या हो गया, उसके फोर आर्म में लग गया है, और अभी क्या है, वो वर्क नहीं कर रहा। आई एम हिट, यानी मुझे चोट लग गई। ही मटर्ड, वो बुदबुदा के उसने कहा कि मुझे चोट लग। Dropping flat onto the roof, he crawled back to the parapet. With his left hand, he felt the injured right forearm. The blood was oozing through the sleeve of his coat. There was no pain, just a dead end sensation, as if the arm had been cut off. और क्या हो गया, अब दोबारा से वो रूफ पे ड्रॉप हो गया और नीचे हो गया, और क्रॉल करते हुए वापस से पैरापेट यानी बाउंड्री के पास आया। विथ हिज लेफ्ट हैंड, उसने अपने लेफ्ट हैंड से राइट फोर आर्म को छुआ, वहाँ से ब्लड निकल रहा था, ब्लड रिस रहा था, और वो कोट के स्लीव पे ब्लड को महसूस कर सकता था। उसके हाथ में कोई पेन नहीं था, बस एक डेड एंड सा सेंसेशन था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आर्म को कट कर दिया गया है। क्विकली ही ड्रू हिज नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, ओपन इट ऑन द ब्रेस्ट वर्क ऑफ द पैरापेट एंड रिप्ड ओपन द स्लीव। अब क्या, जल्दी से उसने नाइफ निकाली अपने पॉकेट से और उसको ओपन किया, और अपनी उस नाइफ से उसने अपने स्लीव को क्या किया, रिप किया, यानी फाड़ा। देयर वॉज ए स्मॉल होल वेयर द बुलेट हैड एंटर्ड। अब क्या, एक स्मॉल होल दिख रहा था जहाँ पे बुलेट एंटर हुई थी। ऑन द अदर साइड देयर वॉज नो होल, और दूसरे साइड में कोई होल नहीं थी। द बुलेट हैड लॉज्ड इन द बोन, यानी जो बुलेट है वो बोन में फंसी हुई है। एक साइड होल था और दूसरे साइड होल नहीं था, यानी बुलेट जो है वो कहाँ है, बोन में है। इट मस्ट हैव फ्रैक्चर्ड इट, यानी जो बुलेट है उसने आर्म को फ्रैक्चर कर दिया होगा। ही बेंट द आर्म बिलो द wound, the arm bent back easily. He ground his teeth to overcome the pain. अब उसने क्या किया, अपने ही बेंट द आर्म बिलो द वाउंड, अपने जो वाउंड है उसके नीचे अपने आर्म को उसने थोड़ा सा मोड़ा। द आर्म बेंट बैक इजीली, जो आर्म है उस तरह से उसने मोड़ने की कोशिश की और वो वापस से मोड़ पा रहा था, हिला डुला पा रहा था। ही ग्राउंड हिज टीथ, और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसने क्या किया, अपने दांत एकदम पीस लिए इस
पेन को ओवरकम करने के लिए। दांत को बहुत टाइट कर लिया एकदम। Then taking out his field dressing, he ripped open the packet with his knife. और जो इस तरह के लोग होते हैं तो अपना कुछ ना कुछ फर्स्ट एड लेके चलते हैं, तो उसने अपनी नाइफ की हेल्प से उस तरह की जो फर्स्ट एड किट थी उस पैकेट को नाइफ की हेल्प से खोला। He broke the neck of the iodine bottle and let the bitter fluid drip into the wound. और उसने आयोडीन बॉटल थी उसके नेक को तोड़ा और उसमें से जो बिटर फ्लूइड निकल रही थी उसको वाउंड पे ड्रिप होने दिया। A paroxysm of pain swept through him. और एक अचानक से बहुत तेज सी दर्द जो है उसमें उसके दर्द पूरे में एकदम दौड़ गई। He placed the cotton wadding over the wound and wrapped the dressing over it. और उसने एक कॉटन की पट्टी रखी अपने वाउंड पे और उसकी ड्रेसिंग कर दी, पट्टी से उसको लपेट दिया। He tied the ends with his teeth. और उसने पट्टी के एंड को अपने दांत से टाई कर दिया। Then he lay still against the parapet and closing his eyes, he made an effort of will to overcome the pain. और फिर तब वो क्या पैरापेट के अगेंस्ट उससे टेक लगाए, वो वैसे ही लेटा रहा एंड क्लोजिंग हिज आईज, वैसे ही पड़ा रहा और अपनी आंखें बंद की। ही मेड एन एफर्ट, और एक एफर्ट लगाई, कोशिश की, ऑफ विल, अपनी जो विल पावर को उसने कलेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो उस पेन को ओवरकम कर सके। इन द स्ट्रीट beneath all was still. The armored car had retired speedily over the bridge with the machine gunner's head hanging lifeless over the turret. और जो स्ट्रीट में नीचे अगर देखा जाए तो सारी चीज़ एकदम स्टिल थी। जो आर्मर्ड कार थी वो वापस जा चुकी थी ब्रिज के तरफ, विद द मशीन गनर्स हेड हैंगिंग लाइफलेस ओवर द टरेट। जो मशीन गनर था उसका जो हेड था वो एकदम लाइफलेस था, टरेट के ऊपर एकदम लाइफलेस था, वो वैसे ही हैंग्ड उसको लेके चले गए उस कार के साथ। The women's corpse lay still in the gutter. The sniper lay still for a long time, nursing his wounded arm and planning escape. अब जो वुमेन थी जिसको बुलेट लगी थी तो वो उसकी जो कॉर्प्स थी, उसकी जो लाश थी वो वैसे ही गटर में पड़ी हुई थी। जो स्नाइपर है वो वैसे ही पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम तक अपने जो वाउंड है उसको नर्सिंग कर रहा था, उसको देख रहा था, उसको हील करने की कोशिश कर रहा था और प्लान कर रहा था कि यहाँ से कैसे भागेगा। मॉर्निंग मस्ट नॉट फाइंड हिम वाउंडेड ऑन द रूफ। और सुबह तक वो यहाँ पे ऐसे ही नहीं रह सकता, उसको कैसे भाग सकता है ये सब वो सोचने लगा। ऐसे जख्मी नहीं रह सकता सुबह तक छत पे। द एनिमी ऑन द अपोजिट रूफ कवर्ड हिज एस्केप। ही मस्ट किल दैट एनिमी एंड ही कुड नॉट यूज हिज राइफल। जो एनिमी है अपोजिट रूफ पे उसने अपना एस्केप जो है उसने कवर कर लिया है और ही मस्ट किल दैट एनिमी, उसको जो वहाँ पे छुपा हुआ है उस एनिमी को उसको मार देना चाहिए। एंड ही कुड नॉट यूज़ हिज राइफल, लेकिन सोच तो रहा है मारने को लेकिन अपना राइफल वो यूज़ नहीं कर सकता है। ही हैड ओनली अ रिवॉल्वर टू डू इट, अब उसके पास एक रिवॉल्वर है जिसकी हेल्प से वो ये कर सकता है। देन ही थॉट ऑफ अ प्लान, तभी उसको एक प्लान सूझा। Taking off his cap, he placed it over the muzzle of his rifle. उसने अपनी कैप उतारी और उसको उतार के राइफल के मजल पे रख दिया। Then he pushed the rifle slowly upward over the parapet. फिर उसने क्या किया, स्लोली उसको जो राइफल है जिसमें कैप लगी हुई है उसको ऊपर की तरफ पैरापेट पे दिखाया। until the cap was visible from the opposite side of the स्ट्रीट। इतना ऊपर किया जब तक कि अपोजिट साइड के एनिमी को वो कैप लगा दिख न जाए, तब तक उतना ऊपर उसने किया। Almost immediately there was a report and a bullet pierced the center of the cap. The sniper slanted the rifle forward. The cap slipped down into the street. Then, catching the rifle in the middle, the sniper dropped his left hand over the roof and left it hang lifeless. Almost immediately, अब जल्दी ही
जैसे ही किसी ने देखा कि कैप ही तो दिख रही थी, तो कैप से ये पता चल रहा था कि कोई ना कोई इंसान है नीचे, इतना ज़्यादा क्लियर तो दिख नहीं रहा था। तो वो राइफल में भले कैप लगी हुई थी लेकिन लग रहा था कि कोई खड़ा है। तो जब ये चीज़ जब एनिमी स्नाइपर को दिखी तो उसने क्या किया, एक बुलेट आया जो कि एकदम सेंटर में, कैप के सेंटर में लगी। जो स्नाइपर है वो स्लैंटर, उसने राइफल को स्लैंट कर दिया फॉरवर्ड, द कैप क्लिप डाउन इनटू द स्ट्रीट, और कैप के साथ ही जो राइफल है वो नीचे गिर गई स्ट्रीट में। देन कैचिंग द राइफल इन द मिडिल, द स्नाइपर ड्रॉप्ड हिज लेफ्ट हैंड ओवर द रूफ एंड लेट इट हैंग। और उस राइफल को कैच करता है, सॉरी, कैप नीचे गिरी थी और उस राइफल को कैच करते हुए उस स्नाइपर ने अपने लेफ्ट हैंड को रूफ के बाहर हैंग कर दिया, लाइफलेसली, एकदम लाइफलेसली हैंग कर दिया। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ही लेट द राइफल ड्रॉप टू द स्ट्रीट, और थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, स्ट्रीट पे राइफल को छोड़ दिया स्ट्रीट पे गिरने के लिए। देन ही सैंक टू द रूफ ड्रैगिंग हिज हैंड विद हिम, तो एकदम अब रूफ में एकदम छुप गया, अपने ड्रैगिंग हिज हैंड विद हिम, अपने हैंड को अपने साथ ड्रैग करते हुए एकदम रूफ में नीचे की तरफ हो गया। क्रॉलिंग क्विकली टू हिज फीट ही पीयर्ड अप एट द कॉर्नर ऑफ द रूफ, और वो क्रॉल करते हुए जल्दी से, क्रॉलिंग टू हिज फीट, अपनी फीट पे जल्दी से क्रॉल करते हुए ही पीयर्ड अप एट द कॉर्नर ऑफ द रूफ, और कॉर्नर की रूफ के कॉर्नर से उसने पीयर किया, झांका। His ruse had succeeded. The other sniper, seeing the cap and rifle fall, thought that he had killed his man. He was now standing before a row of chimney pots, looking across with his head clearly silhouetted against the western sky. तो अभी क्या, इसकी तो ये चाल थी, जो रिपब्लिकन स्नाइपर थी उसकी ये चाल थी। अब वो इस चाल में ये कामयाब हो गया था, बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर द एस्केप, तो अभी उसको एस्केप मिल गया। क्या है, जो दूसरा एनिमी स्नाइपर है उसने कैप और राइफल को जब गिरते हुए देखा तो सोचा कि उसने उस मैन को मार दिया, मैन इन द सेंस रिपब्लिकन स्नाइपर को मार दिया। तो अब क्या है, वो ही वॉज नाउ स्टैंडिंग बिफोर अ रो ऑफ चिमनी पॉट्स, और अब वो एकदम सामने चिमनी पॉट्स के सामने खड़ा हुआ है, लुकिंग अक्रॉस, एकदम सामने देख रहा है, विद हिज हेड क्लियरली सिलुएटेड, और उसका क्लियर जो हेड है वो शैडो में इजीली दिख रहा है वेस्टर्न स्काई के अगेंस्ट, एकदम उसका जो हेड है वो उसका शैडो इजीली दिख रहा है। The Republican sniper smiled and lifted his revolver above the edge of the parapet. जो रिपब्लिकन स्नाइपर है वो मुस्कुराया और उसने अपना रिवॉल्वर उठाया पैरापेट के एज के ऊपर। द डिस्टेंस वॉज अबाउट 50 yards, a hard shot in the dim light, and his right arm was paining him like 1,000 devils. जो डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट 50 yards का था, यानी एक हार्ड शॉट की ज़रूरत है डिम लाइट में, और उसका जो राइट आर्म है वो इट वॉज पेनिंग लाइक हेल, बहुत तेज़ दर्द था। ही टुक अ स्टीडी एम, उसने एक एम लिया, हिज हैंड ट्रेम्बल्ड विद ईगरनेस, प्रेसिंग हिज लिप्स टुगेदर, ही टुक अ डीप ब्रेथ थ्रू हिज नॉस्ट्रिल्स एंड फायर्ड। अब क्या, उसका हाथ जो है ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था ईगरनेस से, और उसने अपने दोनों होंठ को भींचे और एक लंबी सांस ली अपने नाक से और फायर किया। He was almost deafened with the report and his arm shook with the recoil. अब वो ऑलमोस्ट इतना तेज़ था, इसकी जो आवाज़ थी इतनी तेज़ थी कि डिफेंड करने लायक थे, ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि उसके कान एकदम डीप हो जाएगा, वो डिफेंड यानी बहुत बहरा कर देने वाली आवाज़ थी। और उसके आर्म में दोबारा से बहुत बहुत तेज़ जो है ये एक दोबारा से जो झटका हुआ उसकी वजह से और तेज़ दर्द हो गया। Then when the smoke cleared, he peered across and uttered a cry of joy. His enemy had been hit. He was reeling over the parapet in his death agony. अब क्या है, जब ये स्मोक क्लियर हुआ और उसने जब झांका वहाँ से ऊपर से, तो वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने अपनी एनिमी को मार दिया। He struggled to keep his feet, but he was slowly falling forward as if in a dream. The rifle fell from his grasp, hit the parapet, fell over, bounded off the pole of a barber's shop beneath, and then clattered on the pavement.
Then the dying man on the roof crumpled up and fell forward. The body turned over and over in a space and hit the ground with a dull thud. Then it lay still. अब जो एनिमी स्नाइपर को जब बुलेट लगी तो वो अपने पैर पे खड़े रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे स्ट्रगल कर रहा था खड़े रहने के लिए, और जब आगे बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने आप आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे सपने में चल रहा हो। तभी उसकी जो राइफल थी उसके ग्रासेस छूट गई और पैरापेट पे लगते हुए वो गिर गई नीचे और बार्बर की शॉप पे, और उससे टकरा के फिर पेवमेंट पे गिर गई। और जो डाइंग मैन है वो रूफ में वो क्रम्पल अप होके वो भी आगे की तरफ गिर गया, और जो बॉडी है वो इतनी बार टर्न ओवर हुई स्पेस में और आखिर में ग्राउंड पे एक थर्ड साउंड के साथ नीचे गिर गई। देन इट ले स्टिल, और उसके बाद ये शांत पड़ी रही। द स्नाइपर लुक्ड एट हिज एनिमी फॉलिंग एंड ही शडर्ड। जो स्नाइपर है, रिपब्लिकन स्नाइपर है, उसने अपने एनिमी को इस तरह से गिरते देखा और ही शिवर्ड आउट ऑफ फियर, और एकदम कांप सा गया डर के मारे। द लास्ट ऑफ बैटल डाइड इन हिम, और जो लड़ाई की इच्छा थी वो उसके अंदर जैसे मर सी गई। ही बिकेम बाइटन बाय रिमोर्स। अब क्या है, अब उसको जैसे बहुत पछतावा सा होने लगा, दुख सा होने लगा। द स्वेट स्टूड आउट इन बीड्स ऑन हिज फॉरहेड, और मोतियों के रूप में उसके माथे पे क्या हो गया, पसीने आने लगे। Weakened by his wound and the long summer day of fasting and watching on the roof, he revolted from the sight of the shattered mass of his dead enemy. His teeth chattered. He began to gibber to himself, cursing the war, cursing himself, cursing everybody. तो अभी अपने ज़ख्म की वजह से वो पहले ही कमज़ोर हो गया था, प्लस समर लॉन्ग समर डे है तो पूरे दिन सुबह से वो भूखा था, और ऊपर से वो रूफ पे वॉच कर रहा था। और अब जो एनिमी का इस तरह से डेड जो हेड देखा है, अपने एनिमी का शैटर्ड हेड देखा, तो उसकी वजह से एक रिवॉल्ट आ रहा है कि मतलब ये सब क्यों। अभी उसकी टीथ जो है चैटर करने लगे और वो कुछ बड़बड़ाने लगा अपने से। वो वॉर को कर्ज कर रहा है, अपने आप को कर्ज कर रहा है, अपने आप को कोस रहा है और सभी को कोस रहा है। He looked at the smoking revolver in his hand and with an oath he hurled it to the roof at his feet. और अभी जो रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा था उसके हाथ में, उसको देखा उसने, और एक ओथ के साथ एक कसम एक तरह से जैसे ली। ही हर्ल्ड इट टू द रूफ एट हिज फीट, अपने पैर के पास उसने इसको फेंक दिया रिवॉल्वर को। द रिवॉल्वर वेंट ऑफ विद अ कॉन्कशन and the bullet whizzed past the sniper's head. He was frightened back to his senses by the shock. His nerves steadied. The cloud of fear scattered from his mind and he laughed. अब क्या हुआ, अब उसने जब रिवॉल्वर फेंका, जब हर्ल किया, उछाला जब इस तरह से रिवॉल्वर को, तो उसे एक क्या अपने आप एक स्नाइपर के हेड में एक बुलेट जो है अपने आप निकल गई। जब इस तरह से उसने हर्ल किया, उछाला, तो टकरा के उसके एनिमी के स्नाइपर के सर के पास से बुलेट अपने आप चल गई। जब इस तरह से उसने हर्ल किया हवा में, तो इस तरह से अपने आप बुलेट चली गई। तो एक तरह अचानक से डर सा उसके जहन में आ गया, और फिर उसके बाद काफ़ी स्कैटर्ड सा, बिखरा सा वो फील करने लगा, और फिर थोड़ा सा रुक के सोचा, फिर वो हंसने लगा। Taking the whiskey flask from his pocket, he emptied it a draught, and he felt reckless under the influence of the spirit. अभी क्या है, अब उसने फ्लास्क को फिर से निकाला और अपने पॉकेट से और उसको खाली कर दिया। He felt reckless under the influence of the spirit. He decided to leave the roof now and look for his company commander to report. Everywhere around was quiet. There was not much danger in going through the streets. He picked up his revolver and put it in his pocket. Then he crawled down through the skylight to the house underneath. When the sniper reached the laneway on the street level, he felt a sudden curiosity as to the identity of the enemy sniper whom he had killed.
अब क्या है कि उसको सब बहुत अजीब सा लग रहा है, अचानक से उसके अंदर लस्ट की जो बैटल की जो लस्ट है वो ख़त्म हो गई है। तो ये बहुत एक तरह से दो फीलिंग्स है उसके पास, काफ़ी वो शॉक्ड भी है, थोड़ा सा रिमोर्स भी है, पछतावा भी है, और अचानक से उसी में हंस भी रहा है। तो बहुत अजीब सी कंडीशन हो गई। तभी व्हेन ही कम्स बैक इन हिज सेंसेस, तो अब वो सोचता है कि अपने कमांडर को वो रिपोर्ट करे। तो जब वो नीचे जाता है तो हर तरफ सन्नाटा है, बहुत खतरा नहीं है गली में। अपने रिवॉल्वर को उठाता है, पॉकेट में रखता है, और वो क्रॉल करता हुआ यानी रेंगता हुआ वो नीचे आता है। स्नाइपर जो है अभी तो रूफ पे, तो नीचे आता है। एंड व्हेन द स्नाइपर रीच द लेनवे, जब लेनवे में जाता है स्ट्रीट में, स्ट्रीट लेवल पे, तो उसको अचानक से क्यूरियोसिटी होती है कि उस स्नाइपर को जिसको उसने मारा है उसको देखते हैं, उसको देख पहचानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसको उसने मारा। He decided that he was a good shot, whoever he was. He wondered, did he know him? Perhaps he had been in his own company before the split in the army. He decided to risk going over to have a look at him. He peered around the corner into O'Connell Street. In the upper part of the street there was heavy firing, but around here all was quiet. उसने डिसाइड किया कि ये जिसको भी उसने मारा, शॉट तो उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो सोचने लगा कि क्या जिसको उसने मारा वो उसको जानता है। परहैप्स हो सकता है, क्या पता कि जब स्प्लिट, अभी जो दो ग्रुप हो गए हैं, पहले तो डबलिन पूरा एक ही था ना, अभी तो एक इस साइड की स्ट्रीट है वहाँ पे और अपोजिट साइड की स्ट्रीट में लड़ाई हो रही है। तो पहले तो एक ही था, तो क्या पता जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था तो ये दोनों एक ही कंपनी में रहे हों। तो उसने ये रिस्क लेने का सोचा कि जाके देखते हैं कौन है। उसने ओ कॉर्नल स्ट्रीट के कॉर्नर में देखा। एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रीट देयर वाज हेवी फायरिंग, बट अराउंड हेयर ऑल वाज क्वाइट। जो अपर पार्ट, स्ट्रीट के अपर पार्ट में काफ़ी फायरिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ नीचे साइड एकदम शांत सा था। द स्नाइपर darted across the street. A machine gun tore up the ground around him with a hail of bullets, but he escaped. He threw himself face downward beside the corpse. The machine gun stopped. अब जो स्नाइपर है वो स्ट्रीट के क्रॉस जाने लगा, उस पर जाने लगा, और मशीन गन जो है एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन को एकदम टॉर अप छेद देगी, और विद द हेल ऑफ बुलेट्स, बस बुलेट्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। बट ही एस्केप्ड, वो भागते भागते चला गया। वो ही थ्रू हिमसेल्फ फेस डाउनवर्ड बिसाइड द कॉर्प्स, और वो अपने आप को उसने उछाल के बहुत लंबी छलांग लगाई और वो कॉर्प्स के पास यानी लाश के पास चला गया। द मशीन गन स्टॉप्ड, और अब मशीन गन जो है, then the sniper turned over the dead body and looked into his brother's face. अब क्या है, जब स्नाइपर वहाँ पे पहुँच गया और पहुँचकर वहाँ पे उसने डेड बॉडी को टर्न ओवर किया, और टर्न ओवर करने के बाद ही लुक्ड इनटू हिज ब्रदर्स फेस, यानी उसने अपने भाई के चेहरे पे देखा। तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो एनिमी स्नाइपर था वो रिपब्लिकन स्नाइपर का भाई ही था। और इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर आपकी फिनिश हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।